أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض وے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26 میں پاک فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کرو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے. اللہ سونا چکے اپنے تمام بندے نا بہت پیار کردہ ہر ویلے بڑی محبت بری نگاہ نہ ہر انسان نو دیکھ رہا جنہیں مخلوق دی طرف اڑ جے رہے انہوں نے بھی پھر اللہ سونا دا پروگرام دا انکار کر دے انہوں نے بھی کہ تاکہ واپس پلٹے آنا اور میرے تے دلوں ایمان لے آنا منافق کو نکل جانا نفس دی قید چو آزاد ہو جانا دنیا دی شیطان دی قید چو آزاد ہو جانا انہاں دے بنائے پروگراماں چو آزاد ہو جانا اور سچی توبہ تنسو کر کے قلباً میری پاک ذات ڈوب جانا قرآن اور سنت ہر حکم تے عمل کرنا اور اپنا مقصد حیات حاصل کرنا جڑا قرآن حکیم جی رب سونے دسیا الہ ربک منتہاہا اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. کائنات دی ہر شے اللہ پاک دے اسم و صفات دے انوارات دے اکسی ظہورات نے جو کچھ بھی کائنات چاہے اور انسان دا وجود بھی انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے دی فطرت ہے. لیکن اپنے مقصد حیات نو تاں ہی حاصل کر سکتا ہے اگر انسان اللہ رب العزت دے پروگرام تے پورا دی روح دے مطابق عمل کرے گا یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں ایک قرآن حکیم دوسری اپنی سنت تو جب تک تسی اینو کٹ کے پھڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے. اور اے اللہ سونے دا رستہ ہے اور یہی اس صراط مستقیم ہے جڑا انسان دے دل تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک رستہ جاندا ہے جڑا ہر نماز دی ہر رکعت چ اللہ سونے کو منگنے اهدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سانو ساریاں نو ماضی حالو مستقبل دے نیکاں بداں سب نو سیدھے رستے تے چلا یعنی اپنی بارگاہ تک پہنچا کہ تو ہی پہنچا سکنا اسی تا کمزور عاجز مسکین انسان ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان بغیر اللہ رب العزت دے توفیق اور مدد دے رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس واسطے انسان نو چاہیے رہتا ہے تنہائیاں جو رب سونے نو منائے رو رو کے گڑ گڑا کے اور ہر لمحہ اللہ رب العزت دے نال گزارے. قرآن حکیم چ رب سونے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ چ بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے کیونکہ بغیر اللہ دی مدد تو انسان نفس دی لالچ چ بچ نہیں سکتا. قرآن حکیم چ رب سونے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حبیب انہاں لوکاں دس دے اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے تو میری اتباع کرو اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا.
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं देखिया नहीं कि लोगों ने अपनी ख्वाहिश नूं अपना माबूद बना लिया कि इंसान नूं चाहिदा नफस दा बंदा ना बने, दुनिया दा बंदा ना बने, शैतान दा बंदा ना बने, बंदियां दा बंदा ना बने, बल्कि अल्लाह दा बंदा बने। अल्लाह दा बंदा वो ही है जिहड़ा अल्लाह सोहणे ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दिलों ईमान लियाउंदा, इकरारुम बिल लिसान दे नाल ना तो तस्दीकुम बिल कल्ब भी करदा। तस्दीकुम बिल कल्ब उदों ही होनी है जदों इंसान दा दिल जिंदा होगा और कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाएगा, फिर नूरे ईमान ये अंग अंग च रचेगा और फिर ईमान दी रूह हासिल होएगी जिहदे बारे कुरान हकीम च रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ही है जो रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करेगा तो फिर अल्लाह सोने तेरा मुहब्बत करेगा, इनू अपनी राह का मुसाफिर बना देगा और फिर तालिबे मौला बन जाएगा, तलाशे मौला च निकलेगा। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है इंसान नूं जब तक इंसान नफ्सो खलक चों नहीं निकलता। सब तो बड़ा दुश्मन जिहड़ा इंसानी नफ्से उमारा है, नफ्से उमारा शैतान दी जाए क़याम है और इहदी हर ख्वाहिश शैतान दा एक दरवाज़ा आया इहदे तक आउण दा। तो इंसान जब तक नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता और इस नफ्स को मुतमइन्ना नहीं बनाता, ये कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। ना दुनिया दी अफलावां हासिल कर सकता ना आखरत दियां। तो तां ही रब सुने ऐसे आए पाक फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। ये ख्वाहिशात नफसानी इंसान दी सब तो बड़ियां दुश्मन है। इस वास्ते ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नूं हमेशा वास्ते ज़िबा कर दो, मौत तक किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो, बल्कि अल्लाह सोहणे दी मर्जी के मुताबिक अल्लाह सोहणे दी मर्जी ते चलो, यानी कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करो, इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहो, गुमराह फिरके तो दूर रहो। 2 नंबर गैर शरा नशेबाज टोल टमाके नाच गाने दे विच मुबतला ये जाली बाबियां तो दूर रहो और फिर इस्लाम दुश्मन कुव्वतां जिहड़ियां शैतान दियां पुजारी आ इन्हां दे और इन्हां दे प्रोग्रामां तो दूर रहो, गुमराह फिरके तो दूर रहो और जो अल्लाह तो गाफिल है ना लोगों तो दूर रहो। गाफिल अल्लाह तो जिन्ने भी ने ये सारे पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हां दा परछावां बड़ा जहरीला क्योंकि ये सब नफ्स परस्त ने तो इंसान का नफ्स भी इन्हां दे पिछे लाउंदा। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शक्ल खलक चो नहीं निकलता और अपने वक्त दी अपने सावां दी अपनी निगाह दी अपने ज़हन दी अपने कल्ब दी कड़ी निगरानी नहीं करता कि इहदे अंदर मासो अल्लाह का ख्याल भी ना आवे और फनाओ नेस की जमीयत का कमाल हासिल करे, हकुल यकीन का कमाल हासिल करे, फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करे। लेकिन तां ही होना अगर इंसान सही अक़ीदा जिंदा दिल उलमा और मशाइख की सोबत बैठेगा, उन्होंने को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करेगा, इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहेगा, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, अपने पीर मुर्शिद को निस्बत मां अल्लाह की नेमत हासिल करेगा, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड कराएगा, उन्होंने एक्सेप्ट करेगा, इंस्टॉल करेगा अपने दिल के अंदर। तो फिर ये अंदर नूरे ईमान ये रग रग रचेगा, नूरे इरफान इलाही, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमल कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खलक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सफ़ाती ज़ाती अनवार तजलियात इत्ते बरसणगे और ये अनवारात अपने अंदर जज़ब करता रहेगा और फिर ये अंदर हर जुल्माती लहर निकलेगी क्योंकि ये लताइफ जिहड़े आलम अमर दे लताइफ अल्लाह सोहणे दे जिस्म दे अंदर रखे ने वो जुल्मत नाल लुथड़ गए ने, इसे वास्ते परवाज दे काबिल ना रहे बातन दे अंदर। जो हर जुल्माती लहर इहदे अंदर निकलेगी
दवाऊं कलबी जिक्र हजूर दा नूर इहदे अंदर रचे बसेगा ते फिर इहदा अंदर पाक होएगा। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। सारी मसले मसाइल तो यह भी जानता सीगा शैतान भी। 1,24,000 नबियां नाल मत्था लाउंदा आया, तमाम अल्लाह वाले नाल मत्था लाउंदा आया, हुण भी ला रहा, गां भी लाऊगा, क्योंकि इंसान का खुला दुश्मन है। यदि कोशिश है कि इनू अल्लाह की राह तो हटाओ और इनू दुनिया तालब बनाओ, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने। और हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। ये नफ्से उमारा इंसान नू इस पासे लाउंदा है। तां ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सीगा कि जिन्हें अपने नफ्स नू पहचानिया तहकीक होने अपने रब नू पहचानिया। ये नफ्से उमारा ही इंसान का दुश्मन है। जब तक इंसान ला इलाहा दी नफ़ी हासिल नहीं करता, कुल्ली कल्ब नफ्स खल्क जो नहीं निकलता और इल्लल्लाह दा इसबात हासिल नहीं करता, कल्ब ज़ाते मौला च नहीं डुबदा, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। तो इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन नफ्स है, जिहड़ा इंसान को बर्बाद करता है, इंसान को मासवा अल्लाह दा पुजारी बनाउंदा, नफ्स का शैतान का बंदियां का बंदा बनाउंदा, अल्लाह का बंदा नहीं रहन दिंदा। इस वास्ते इसे नफ्से उमारा के खिलाफ जिहाद अकबर करके इनू मुतमन्ना करना ताकि बारगाह खुदाबंदी दे लायक हो जाए और यदि रूह बातन च परवाज करदे हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल करे। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया ते मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज किया कि अल्लाह सोने किहड़ा अमल तेरे नज़दीक बेहतर है। रब सोने इरशाद फरमाया कि वह अमाल जिन्हां विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ भी ना होवे और वो अमल करने वाला उस अमल तो गायब होवे। फिर इसी तरह ही फिर एक दफ़ा हजूरी च हाज़री का शरफ मिलिया ते रब सोने नू मैं देखिया दीदार किया अल्लाह सोने का और अर्ज की कि अल्लाह सोने इश्क दे की माने ने। अल्लाह सोने फरमाया मेरे नाल रह और अपने दिल नू मेरे गैर तो बचा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात की है कि अल्लाह के नज़दीक सब तो बेहतरीन अमल वो है जिहड़े सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोने के सामने अल्लाह सोने वास्ते किए जान और हर लम्हा अल्लाह सोने ना गुजारिया जाए। यही ईमान है, यही इश्क है। लेकिन शैतान जिहड़ा इंसान को इस पासे नहीं जान दिंदा, नफ्से उमारा जिहड़ा इस पासे नहीं जान दिंदा। इस वास्ते नफ्स के खिलाफ जिहाद बहुत जरूरी है। फतेह रुबानी के अंदर लिखिया है कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि किसी दूसरे के उत्ते अपने नफ्स और ख्वाहिश ना एतराज ना कर, बल्कि ईमान ना एतराज कर कि जिहदे विच नफ्स की ख्वाहिश ना होवे, मर्जी मौला होवे। फिर आप फरमांदे ने कि जिहड़ा शख्स अपने नफ्स का ही उस्ताद नहीं बन सकिया वो दूसरे का उस्ताद किवें बनेगा। फिर आप फरमांदे ने कि तेरा नफ्स, तेरी ख्वाहिश, तेरी तबीयत और तेरे बुरे हमनशीन जिहड़े ने ये सब तेरे दुश्मन ने, इन्हां को बच कि तैनू ये हलाकत विच ना पा देना। फिर आप फरमांदे कि जिहड़ा शख्स अपने नफ्स तो वाकिफ हो जाता है वो अल्लाह सोने दे और उसदी मखलूक दे अगे मुतवाज़े बन जाता। क्या फरमांदे ने कि अपने नफ्स का वाइज खुद बन,
ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚूंकि ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅੱਲਾ ਇਕਰਾ ਫਿ ਦੀਨ ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਬੰਦ, ਮौज ਕਰ। ਅਜ਼ਲੀ ਸਈਦੁਲ ਫਿਤਰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਲਸ ਦਿਲੋਂ ਬਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਜ਼ਲੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਹਾਈਆਂ ਉਧਰ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਬੋ ਅਰਬਾਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਨਫਸ ਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਫੀਅਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ नेमत दे विच है। सुभान अल्लाह, सारे कितने प्यारे अकवाल है आपदे। आप फरमांदे अभी कदे भी अपने खाश के मुताबिक कदे भी किसी ते इतराज ना कर। अगर किते कोई गैर शरा काम देखना है तो अल्लाह के हुक्म ना इतराज करी। ते अपना उस्ताद आप बन, बाहरों तेन किसे सही नहीं करना, तू आप ही अपने नफ्स को सुधारना है। अगर नमाज के पासे नहीं जाता, इनू नमाज के पासे फड़ के लाना है। अगर ना लगे तो इनू सजा देनी है। अगर नेकी के पासे नहीं जाता, नेकी के पासे जबरदस्ती लाना। अगर सच के पासे नहीं जाता, इनू सच जबरदस्ती लाना। अगर फितरत के पासे नहीं जाता, इन्हें फितरत लाना है। क्योंकि हदीस पाक च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा। यानी इस्लाम जिहड़ा दीन फितरत है। अगर इंसान फितरत ते कायम है तो फिर इंसान नफा पाएगा, ज़ाहिर भी तो बात नहीं भी। जिस्मानी बीमारियां तो बचा रहेगा। जिवें लुकमान हकीम ने किसी पूछया कि इंसान बीमार क्यों होंदा है, तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाउण लगे कि जो इंसान फितरत तो हटदा, जो इलाज पूछया उन्हें कहा दोबारा फितरत आ जा। तो फितरत यही है कि इंसान अल्लाह का बन जाए, अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करे। और ये जिस्मानी फितरत यही है कि इंसान मिट्टी चो बनया तो मिट्टी दे रहिंदा, तो मिट्टी विच जिस्म ने जाना। तो अगर यह बद परहेजियां ना बीमार हो जाए तो इसका इलाज भी इसे मिट्टी में अल्लाह रखिया, ये फितरी इलाज करे। जिन्हें भी ये फल है, सब्जियां, मेवाजात, मादनियात, नमकियात, और ये मिट्टी के अंदर पैदा होंदे है, और पानी मिट्टी के अंदर ही है। ये चीज़ां फितरी इस्तेमाल करे तो बीमारियां तो बचा रहेगा। लेकिन जे इनू छड़ के केमिकली दवाइयां और ग़िज़ावां दे पीछे लगेगा तो फिर मज़ीद बीमार हो जाएगा। बीमारी के इलाज का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले उसकी वजूहात तलाश करो, कि वजूहात सारियां अगर गौर करोगे तो हकीकत खुल के सामने आऊगी कि जदों इंसान फितरत के खिलाफ जिंदगी गुजारदा ये उदों बीमार हुंदा, जो सोचा मनफी होंदियां खिलाफ फितरत उदों बीमार हुंदा। जदों अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल नहीं करता, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, उदों रूहानी बीमार हुंदा। तो जब तक इंसान ये वजूहात नहीं लभदा तो वजूहात फितरत तो हटना ही है। उस तो बाद सिम्पटम है, अलामत ने वो बीमारी दी अलामत की पैदा हुई हैं, तो फिर वजूहात समझ आएगी कि अलामत इस वजूहात ना पैदा हुई हैं। फिर इंसान वो सारिया चीज़ों छड़ दे जिन्हां दी वजह ना ये अलामत पैदा हुई हैं। बीमारियां दे नाम तो असीं आप रखे हैं, उन्हां चीज़ों तो परहेज करे
तो उस तो अगला मरहला फिर इलाज करे दा फितरत के मुताबिक इस जमीन चो पैदा होने वाली चीज़ों के, ना कि केमिकली दवाइयां और ग़ज़ाऊं तो। और ये लोग कदे भी नहीं दसणगे ये चीज़ां, जिन्हें भी पेशावर लोग है, मुर्दा नफ्स है, तो नुस्खे दसी जाएंगे तुहानू, कदे वजूहात के पास नहीं दसणगे। सच्चे लोग ही दसणगे वजूहात कि इन्हां चीज़ां ते अमल करो। और वो अमल सिर्फ और सिर्फ यह है कि इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। क्यों कि इस्लाम यही है, अल्लाह का पसंदीदा दीन यही है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान करीम भी रब ने फरमाया। और इस्लाम का मुकम्मल कामल नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात ही है। इस वास्ते कुरान हकीम च रब ने दसिया कि तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल मेरे हबीब की ज़ात है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते। आप चलते फिरते इस्लाम से, चलते फिरते कुरान से, हर आपका हर अमल कुरान से, हर अमल इस्लाम से। तो जरा शख्स भी कुरान सुन्नत पे अमल करेगा, इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना होएगा, वो फितरत पे कायम रहेगा। और इन्हां मसाइल और मुश्किलात तो, बीमारियां तो, डिप्रेशनां तो, परेशानियां तो, टेंशनां तो, गमां तो, दुखां तो, मुसीबतां तो बचिया रहेगा। लेकिन जिवें ही इस तो हटेगा तो इंसान जिस्मानी, रूहानी, नफसियाती अमराज में मुब्तला हो जाएगा, परेशानियां, बेचैनियां में मुब्तला हो जाएगा। सुमारज कर रहे सी भी ये चीज़ां सारियां जड़ियां है इंसानी नफ्स से मारा है, जिहड़ा इंसान नूं इन्हां कम्मां च उलझाउंदा है। तां हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि अपना उस्ताद आप बन, तू अपने नफ्स नूं आप सुधारना है। शैतान दा बंदा ना बन, नफ्स दा बंदा ना बन, दुनिया दा बंदा ना बन, बल्कि अल्लाह दा बंदा बन। ते अपने नफ्स नूं इत्तबा रसूल दे पासे ला, अमल कुरान दे पिछे ला। तो जदों तू नफ्स नूं पहचान लेगा, इसकी हकीकत समझ जाएगा, फिर खुद ब खुद इन्हूं छड्ड देगा। दुनिया नूं पहचान लेगा, इन्हूं छड्ड देगा। शैतान नूं पहचानेगा तो लानत पाएगा, इन्हूं छड्ड देगा। तो जो तू अल्लाह सोने नूं पहचान लेगा, फिर आए मौला दा मुसाफिर बन जाएगा, कल्बन ज़ाते मौला डुब जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लानत फरमाई है जिहड़ा दुनिया ते भरोसा करदा है। ये खलकी असबाबो और बाब तो निकल जाए, इन्हां ते भरोसा ना कर। तो जब तक इंसान अपने नफ्स तो, अपनी ख्वाहिशां तो और अपने बदअमालियां तो, फस्को फजूर तो, अपने इल्हाद तो, अपनी ज़िंदगियत चो और मासवा अल्लाह जो सारी खलक चो नहीं निकलता, इन्हां तो फना नहीं होंदा। और कल्बन ज़ाते मौला च फना हो के फना का कमाल हासिल नहीं करता, हकुल यकीन का कमाल हासिल नहीं करता, फना फिर जिक्र और सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल नहीं करता, फना नेस्ती जमीयत का कमाल हासिल नहीं करता। कल्बन ज़ाते मौला च नहीं डुबदा, ये नेमत हासिल नहीं होनी है, तो ना ही राह मौला का मुसाफिर बन सकता। तो इंसान नूं चाहिदा जिंदा दिल उलमा मशाइख की सोबत च बैठे, उन्होंने कुरान सुन्नत फिक़ह दा इल्म हासिल करे, उत्ते रूह के मुताबिक अमल करे, अपने पीरो मुर्शिद को रूहानी मुहम्मदी एप्लीकेशन हासिल करे और अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़ तो मुजाहदात करे, मुराकबात करे, इस बाकी वलायत करे, सारी खलक तो अलग हो गए। जिवें हज़रत इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि हर रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, चल बुल्ले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी रमज पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। इन सब तो अलग हो गए इंसान और पूरी कोशिश करे कि मखलूक इनू ना जाने, ना ये मखलूक नू जाने, कुल ही इन्हां तो बेखबर हो जाए, बेनियाज हो जाए, इन्हां हर ताल्लुक और राबता तोड़ देंगे, किसी मामले च ना आए, वरना फंस जाएगा मुसीबत। क्योंकि ख्वाहिशां इस पासे लौंदियां, तां ही रब ने फरमाया ख्वाहिश की अमल ना करी तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। गुलामी कर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, कि आप सुने अल्लाह के हबीब ने और आप रहमत ने तमाम मखलूकात वास्ते, सारे आलमां वास्ते। ते आप दी रहमत लिल आलमीन दा नूर हासिल कर, ताकि वो रहमत लिल आलमीन दा परताव तेते ही पै जाए, तू भी रहमत बन जाए।
خلق خدا واسطے اللہ دی مخلوق دا بے غرض بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت سب دا بھلا کریں، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کریں، نفع بخشیاں کریں، لیکن غافلاں دا بھلا بچ بچ کے کرے ہو، کیونکہ یہ لوگ بڑے ظالم نے، پاگل وحشی درندے نے، انہاں دا پرچھاواں بڑا زہریلا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت فنا جب تک نہیں ہوندا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب سونے گل کہی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی نہ ہوندے تے میں افلاک پیدا نہ کردا۔ اس واسطے آپ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ انسان نو چاہیے اپنے پیر و مرشد سن دی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تائیں فرمایا کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن دے آئی ہو، تے جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہو۔ کیونکہ جب تک اپنے پیر و مرشد کو تو ہے نسبت ماں اللہ دی نعمت حاصل نہیں کردا، تیرے قلب دا تعلق بے واسطہ پیرانے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور اللہ سونے نہ نہیں ہو سکتا۔ تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رابطہ ہوئے گا اور اللہ سونے نہ قلبی رابطہ ہوئے گا، قلب ذات مولا ہمیشہ واسطے ڈب جائے گا، تو پھر لین سدھی ہو۔ لیکن یہ اللہ والیاں کو نعمت ملنی ہے، سب اللہ والے یہ تعلیم دندے آئے نے، خود اللہ سونے بھی تعلیم دتی قرآن حکیم جو وابتغوا لہ الوسیلہ، اللہ دی راج وسیلہ اللہ پڑھ، اور وسیلہ سچا سچے پیر و مرشد نے۔ ظاہری علم پڑھیا ہے یہ گل نہیں پڑھنی، ظاہری نمازاں پڑھیا بھی گل نہیں پڑھنی جب تک انسان قلبی نماز نہیں پڑھتا، نماز عشق نہیں پڑھتا۔ حدیث پاک چاہے کہ جہاں ظاہری نماز نہیں پڑھتا وہ باطنی قبول نہیں، جہاں باطنی نماز نہیں پڑھتا وہ ظاہری نماز قبول نہیں۔ دوئے نمازاں لازم و ملزوم آپ، پانچ وقتی نماز ہے یہ بھی لازمی ہے، پھر درویشاں دی نماز تہجد ہے، اشراق اوابین ہے، چاشت ہے اور دیگر نوافل ہیں، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور صلاۃ تسبیح ہے اور دیگر نوافل ہے، دیگر اذکار ہے۔ جب تک انسان مسنون ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا کدے انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری علم اسے واسطے پہلے بزرگاں دا طریقہ ہمیشہ یہ سی کہ قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کر کے خانقاہاں سچے اللہ والوں کو جا کے باطنی علم پڑھ سکھتے سکے عملاً، کیونکہ اسلامی علم تصوف جڑا عملی پروگرام ہے، یہ روحانی فطری سائنس ہے، قرآنی سائنس ہے، محمدی سائنس ہے، جتے عمل کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا۔ وہ ظاہری جنہیں مرضی انسان علم پڑھ لے، جڑا مرضی حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، فقیہ بن جائے، جب تک باطنی علم حاصل نہیں کرتا کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ نفس جڑا وہ زندہ رہنا ہے، تو نفس مرے گا، فنائے نفس حاصل ہو تو فنائے قلب حاصل ہوئے گی، تو پھر وہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے ہے، الف اللہ پڑھ حافظ ہویاں نہ گیا حجابوں پردہ ہو، تے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، تے حجے بھی طالب زردہ ہو، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بعض فقیراں کسے نہ ماریا، باہو اے ظالم چور اندر دا ہو۔ آپ فرمان دے انہوں صرف اللہ والا ہی ماریا، نفس سے مارا نہ، رب سن دے اس حکم تے اللہ والا ہی عمل کیتا ہے، کیونکہ یہی انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، نفس سے مارا انسان دا یہ فرعون ہے، بہت بڑا شیطان ہے جڑا انسان نو تباہ برباد کردا، دنیا طالب بناوندا۔ تاں ہی رب سنے اس آیت پاک فرمایا کہ نفس تے
नफस की ख्वाहिश की अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा दे। और कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया जिन्होंने नफस की लालच को बचा लिया वही लोग फलाह पाने वाले ने, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और मदद तो इंसान नफस की लालच को बच नहीं सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए रातें तन्हाइयां जरूर रो के अल्लाह सोने ने बनाए। तो कुरान हकीम जी रब सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि हबीब तुसीं देखा नहीं लोगों ने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया कि दिन रात अपनी ख्वाहिश के पिछे दौड़े हुए हैं। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो, गौर करके सब ख्वाहिशों के पिछे दौड़े हुए हैं। अल्लाह तो गाफिल है, ना इन्होंने हुकूकुल्लाह का ख्याल है ना हुकूकुल इबाद का ख्याल है। और ये जालिम नफ्स परस्त जिन्हें भी है गौर करके देखो, भरा भरा का नहीं बनता, भैन भैन की नहीं बनती, भैन भरा की नहीं बनती, भरा भैन की नहीं बनती, औलाद माँ बाप की नहीं बनती, माँ बाप औलाद की नहीं बनती, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं बनता, आले महल्ला पड़ोसी एक दूसरे नहीं बनते। सिर्फ गर्ज ने एक दूसरे नाल वाबस्ता है और अपना उल्लू सीधा कर दिया, खुद गर्ज है, मतलब परस्त है। तोता चश्म ने एक मिनट च अखां फेर लेंदे ने, उसकी वजह सिर्फ नफ्स परस्ती है। और नफ्स के बंदे बने ने, शैतान के बंदे, दुनिया के बंदे बने ने। इस वास्ते इन्हां अंदर गंदियां आदतां आ गईयां, इन्हां अंदरों दर्दमंदी ना रही, ना इंसानियत का दर्द रहा, ना अल्लाह की मुहब्बत का दर्द होया, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत होया, तो दर्द पैदा होया। इस वास्ते इन्होंने रूहानी मिराज नसीब नहीं होंदी, रूहानी सुपरमैन नहीं बन सकते। इन्हें निस्बत मां अल्लाह की नेमत चुके हासिल नहीं, जरा फितरत तो दूर ने लोग। और जिन्हें गुमराह फिर के इन्हों का भी यही हाल है, इन्होंने भी कुरान सुन्नत को मजाक बनाया होया। इजमा अहले सुन्नत तो अलग हो गया, अपने फिरके फिरकियां टोलियां बनाइया तो दीन के नाल लोगों को गुमराह करके अपनी टोलियां फिरकियां नूं वधाउण दे चक्कर च इस्लाम का बंदा नहीं बनाते, अल्लाह का बंदा नहीं बनाते, नबी पाक की इतबा नहीं दसते, हजूरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दसते, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दसते, हजूरी खुदा जल्ला शानो की तालीम नहीं देंगे, अल्लाह की मुहब्बत की तालीम नहीं देंगे, खल्के खुदा का भला करने की तालीम नहीं देंगे। जिवें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबाद के लिए कम न थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान के दुनिया में काम आए, इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इन्हां अंदर ना अल्लाह के बंदियां की मुहब्बत है, ना अल्लाह की मुहब्बत है। इसलिए कि नफ्स परस्त है, इन्हें अल्लाह की मुहब्बत हासिल नहीं हुई, ईमान की रूह हासिल नहीं हुई। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो जिन्होंने अल्लाह की मुहब्बत हासिल नहीं, उन्होंने बंदियां की मुहब्बत कितों हासिल होएगी। दिल पछौरी करना से गुमराह फिर के इसे वास्ते, जिवें इकबाल फरमांदे ने, इन्हां कुरान पाक नाल कुरान तो बदल नहीं सकते, क्यों कुरान की हफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सोने चुक्या होया। लेकिन कुरान हकीम के मानी मुहाफिम और मतलब बदल के अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी ख्वाहिशां दे सांचे ढाल लेंदे ने। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, कुरान को बाजी चाहे इतफाल बनाकर चाहें तो करें नई शरीयत एक ईजाद। ये नवे नवे मॉडर्न इस्लाम बनाते रहते हैं और हमेशा ये तबाह बर्बाद होए ने। ये सब दजाली एजेंट ने, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक। इकबाल फरमांदे ने चक्कर च ना फंसी, तो खुद कुरान के अंदर गौर कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, अल्लाह वाले तरीके के मुताबिक कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको ता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफी की तरीक़त में फ़कत मस्ती है हवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती है गुफ्तार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती है किरदार। इन्हें दो नंबर लोगों को बच, जिवें बाबुल्ले शाह फरमा दे, उचियां बांगा चांगा मारे, मिंबर ते चढ़वाज पुकारे, तेनू कीता इल्म खुआर इल्म बस करियो यार। कुरान किताबा चार शफेर गिरदे चानण अंदर अनेर, तेनू कीता इल्म खुआर इल्म बस करियो यार।
तंबा चुक मसीते जावे, तेला लैके छुरी चलावे, नाल कसाइयां बहुत प्यार, इल्म बस करी हुई आ। इन्हां ने दीन नूं जरिया मुआश बना लिया। 2 नंबर बाबियां ने रूहानीयत नूं, रूहानीयत दा नाम तां हालांकि रूहानीयत नहीं है, रूहानीयत तां ओही है जिहड़ी कुरान सुन्नत दे मुताबिक है, ये शैतानीयत है। ते इनूं इन्हां लोकां ने पेशा बना लिया। इसे वास्ते इन्हां दी जायदादां दिन ब दिन वधदियां रहिंदियां। जिवें इलामा इकबाल फरमांदे, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, मुरीद को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी। ना खुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हर मोर बना दो। इन्हां सारियां ने दीन नूं, इस रूहानीयत नूं पेशा बनाया। हालां सच्चे अल्लाह वाले तां जमा तमा तो फारग हुंदे आ, इन्हां दे बैंक बैलेंस भरे हुए ने। इंसानियत लागे सिसक रही है, इन्हां अंदर कदे भी दर्द पैदा नहीं हुंदा इंसानियत दा। और ये जिन्ने भी 2 नंबर गैर शरा पीरियां मुरीदियां वाले आई, गुमराह फिरके ने पीरियां मुरीदियां अजकल शुरू कीतियां होईयां। ये नूर निस्बत तो खाली लोग आ सारे। ये पीरां मुरीदां ने खामोश समझौते आपो चाहुंदे कि तू मैनू कुछ ना कही, मैं तैनू कुछ नहीं कहना, तू भी बुले लै ते मैनू भी मौजां करन दे, बस नजराने दई रख ते मौज कर। साल बाद पैसे इकट्ठे करके मेले करा छड़े। और फिर सारे एक दूसरे ब्लैकमेल करते हैं। गौर करके देखियो, ते पीर मुरीदां दीयां कमजोरियां देख के उन्होंने ब्लैकमेल करते हैं, मुरीद पीरां दीयां कमजोरियां देख के पीरां नूं ब्लैकमेल करते हैं। और ये जालिम बड़े अजीब लोग हैं, चूँकि सारे नफ्स परस्त है। हकीकत ने लोगों ने खामोश समझौता किया होंगे एक दूसरे नाल। हाँ जी, इन्हां लोगों को दूर रहो। सच्चा रस्ता कुरान सुन्नत दा, सच्चा रस्ता आइमा अरबा दा, सच्चा रस्ता सच्चे अल्लाह वालियां दा जिन्हां दी कबरां आबाद है। और अज भी वो कबरां विच भी फैज़ वंड रहे हैं, कोई लैण वाला चाहिए। उन्हां दे मज़ारात ते जिहड़ा भी सच्चे दिल नाल अकीदत नाल हाज़र हुंदा ते उन्हां नूं नवाज़दे ने। और हुण तां जी साइंस ने भी साबित करता कि मज़ारात दे इर्द गिर्द ऐसे नूरानी हाले और हैगा मौजूद है कि कबरां चो अनवारात हर वेले फुट रहे हैं। उत्थे हर वेले अल्लाह पाक दे अनवार तजल्लियात दे मींह पै रहे हैं। तो इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह सोहणे दे हुक्म नूं मन्ने, कुरान सुन्नत दी रूह ते पूरी तरह अमल करे। लेकिन अमल तां ही हो अगर इंसान नफ्से मारा नफ्से मुतमन्ना बनाएगा, इसके खिलाफ जिहाद अकबर करेगा, तो फिर यह फनाफे तौहीद होएगा, तो तौहीद का पैगाम लैके अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाएगा। क्योंकि हर मुसलमान की जिम्मेदारी अल्लाह के इस पैगाम नूं, जिहड़ा पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े तक पहुँचे, उस पैगाम नूं दुनिया के हर इंसान तक हिकमत ना, मुहब्बत ना, प्यार ना, खिदमत ना पहुँचाइए। तो ये पैगाम ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि अल्लाह के इस दीन ने हर कच्चे पक्के मकान च पहुँचना ही पहुँचना है। सच्चे अल्लाह वाले सीने चुके तौहीद का चांडा लग्या हुंदा है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि तू मुहम्मदी है, अपना मुहम्मदी होना पहचान ते मुहम्मदी सच्चा बन। सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इताअत कर, कुरान और सुन्नत ते अमल कर। बाकी जिन्ने शैतान दे पैरोकारा ने, गुमराह फिरकिया ने, 2 नंबर गैर शराब बाबिया ने बड़ा निसाब, इन सब को दफन कर दे। सिर्फ कुरान सुन्नत ते अमल कर, यदी रूह के मुताबिक। फिर आही मौला दा मुसाफिर बन जा, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जा। कलबर ज़ाते मौला डुब्बा रहा, कुरब दे मुरातब तय तय करदिया होया अल्लाह की तरफ अपनी रूह नूं उड़ाउंदा रहे। अंदर नूं साफ करेगा तो नेमत हासिल होएगी। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि नफ्से उम्मारा नूं नफ्से मुतमन्ना बनाइए, यदि किसी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करिए। ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करिए, लाज तलवार ना हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दिए। तो अल्लाह सोहणे को तौफीक को मदद मंगिए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए सच्चे दिल नाल तौबा करिए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहणे हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है,
अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका, अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्षा माफ़ फरमा। कुरान ते सलाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और साडे अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।